area is in the field of computer network and parallel computing. He had the privilege to work on India's first supercomputer Param at NIT Allahabad. He has delivered more than 50 expert lectures in the area of computer science. He has written one book and is in the process of writing another book on parallel computing. 7 candidates are awarded PhD under his supervision. He has contributed more than 80 research papers in various national and international journals and conferences. He is associated with various professional bodies, Fellow of the Institution of Engineers India, Honorary Secretary of Institution of Engineers Chhattisgarh State for 3 years from 2018 to 21. He was Certified Chartered Engineer, Chairman of CSI Raipur chapter in 2014-15 and 15-16. He is life member of IETE, ISTE, and CSI. He has received various awards, received the Chhattisgarh Combined Engineers Association sponsored Eminent Engineer Award by the Honorable Chief Minister of Chhattisgarh in the year 2008 and by the Honorable Home Minister of Chhattisgarh in the year 2009 and 2019 on the occasion of Engineers Day. He was felicitated by the Institution of Engineers Chhattisgarh State Center on Teachers Day, celebrated at NIT Raipur, honored with Chapter Patron Award of Computer Society of India at Kolkata in 2018. He has undergone various projects. He has completed one UGC sponsored research project, and another CG cost sponsored research project is going on from which started in 2013. He has been the nodal officer for implementation of MHRD sponsored NKN and some other projects with a worth around ₹1 crore. So we are thankful, Dr. Sanjay Kumar sir, to spare your valuable time for us. Thank you. So now over to Dr. Dubey sir. Yeah, thank you. Thank you very much to brief our today's speaker. I request our today's speaker, Dr. Sanjay Kumar sir. Please, sir, you share your PPT and start the presentation. Sanjay sir, now you can share your PPT, sir. Yes, very good afternoon. Yeah. The screen is shared? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So, very good morning to all of you, all the participants. And it is my proud privilege to be a part of this prestigious webinar. And for this, I thank Dr. Vivek Dubey sir
for giving me this opportunity to share my thoughts in this morning. So, as you know that today we are going through a troublesome time due to COVID-19. So I thought that certain things which I have experimented or which I have learned from various sources that can be helpful to other people while teaching. So I am going to present my today's lecture on digital education during COVID-19 situation. I will start with few quotations, then introduction, data information and knowledge, analog and digital systems, communication systems, video conferencing, Swayamprabha, NPTEL, etc. So I am starting with this श्लोक जिसका मतलब है शिष्य अपने गुरु से ज्ञान का पौना भाग ही सीखता है, 1/4 वो अपने टीचर से सीखता है, कोई भी स्टूडेंट. Another 1/4 that he learns from his that means own mind or brain. तीसरा पौना भाग वो अपने साथी विद्यार्थी कलीग से सीखता है, और चौथा माने रिमेनिंग 1/4 वो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है. Vivekanand ji has said, education is the manifestation of perfection already in a man. Similarly, Vivekanand ji has said, in a day when you don't come across any problem, you can be sure that you are traveling in a wrong path. You can understand and appreciate the meaning and importance of problems also. That if you are coming across the problems, then that means you are going on right path. During the last time, Bhagat Singh said, जब भगत सिंह जेल में थे और फांसी के लिए जल्लाद लेने आए, तो उन्होंने क्या कहा जल्लादों को? उन्होंने कहा, अरे भाई कुछ देर रुको, अभी मैं लेनिन को पढ़ रहा हूँ. शहीद भगत सिंह कोई एकेडमिशियन नहीं थे, लेकिन उनमें लर्निंग, टीचिंग लर्निंग के कितनी जिज्ञासा थी और कितना कौतूहल था, कितना इंटरेस्ट था, ये पता चलता है. तो वन शुड इनकलकेट द हैबिट ऑफ रीडिंग. इंटरेस्ट को इनकलकेट करना चाहिए पहले तो. तो कमिंग ऑन आवर टुडेज लेक्चर, नॉलेज ट्रांसफर जो है, अल्टीमेटली दिस इज ऑल द मीन्स फॉर ट्रांसफरिंग नॉलेज. तो सबसे पहले गुरुकुल हुआ करता था, विच वाज क्वाइट सक्सेसफुल. गुरुकुल बहुत समय पहले हुआ करता था, जैसे कि हम लोग रामायण महाभारत में पढ़ते हैं. बुक बेस्ड एजुकेशन आया, जिसमें कि बुक्स का यूज किया गया. रेडियो टीवी बेस्ड एजुकेशन है, इंटरनेट बेस्ड एजुकेशन है, जिसमें कि डिस्टेंस एजुकेशन है, और टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस बढ़ने लग गया. TEACH मीन्स टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग. कॉन्सेप्ट्स, न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ internship and entrepreneurship came up. Internship is very good and students become employable with money. That means problem is that although students are getting degrees, they are not becoming employable. So internship may be of useful and helpful to make the students employable. Similarly, entrepreneurship, concept of entrepreneurship came up, in which job seeker is converted into job generator. Job generator means by establishing his or own unit, a small enterprise industry, he can give employment to not only to himself but to others also. So education, as you know, has made the life of human better. Ultimately, objective is to make our life simple, easy, enjoyable. So education is playing its role in making the human life better. In India, education started from the sacred name called what is called Gurukul, as I told earlier also. Then shifted to ashrams, then to schools, colleges, universities. But it is interesting to note that even at
PhD level, Guru Shishya environment prevails even now also, similar to Gurukul. PhD में अल्टीमेटली एक तरह से गुरुकुल की पुनरावृत्ति हो जाती है। आपको बताएं कि यूनाइटेड नेशंस has set up 17 goals for sustainable development to be achieved by 2030. This is very important thing. I'm talking about the goals set up by United Nations in world, which are required to be achieved, targeted to be achieved by 2030. And these goals are zero poverty. This is goal number 1. Zero hunger, 2. Good health and well-being, goal number 3. Quality education, goal number 4. There are 17 goals, as I told, but quality education is goal number 4. So that means today's topic is relevant to United Nations goals also. Gender equality, clean energy, and etc. There are 17 such goals. Affordable and clean energy. So quality education is goal number 4. Similarly, water is goal 6, clean energy is goal 7. Anyway, so unfortunately, gross enrollment ratio in India is only 21%, which is to be increased to 30% in next 3 years. That means the gross enrollment ratio means number of students coming out of 12th in entire India. And out of those, suppose 100 students are coming out after passing 12th in India, then only 21 students are taking admission in colleges. So this picture is not good, and this is required to be increased. Digital education is emerging as a new frontier, enabling any time learning for anybody at his own place in domain of his interest. जिसका जिसमें मन है वो घर बैठे उसको सुविधा उपलब्ध है, वो उस चीज की शिक्षा ग्रहण कर सकता है। ये आज की फैसिलिटी हो गई है। डिजिटल एजुकेशन कैन मेक इट पॉसिबल। In India, where higher education continues to remain dream for many people, Government of India has launched Digital India campaign. Therefore, MHRD is promoting and spreading digital education to the masses of people in India. माने India is a very large country, area-wise as well as population-wise. Therefore, it is quite difficult, challenging job to that means spread education at each nook and corner of India to last person of India. So digital education can play vital and very big role, and therefore MHRD, Government of India, is also promoting to spread digital education, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन से तो जो है ये काफी कठिन है कि आप हर व्यक्ति को शिक्षित कर पाए पूरे भारत में. But I am adding one line from my side. Digital education cannot replace an experienced teacher. सब लोग कोई भी पूछ सकता है कि भाई इतनी सारी बढ़िया बढ़िया मटेरियल उपलब्ध है हमको, तो टीचर की क्या जरूरत है? But I am of the opinion that digital education cannot replace a good and experienced teacher, but it can definitely add to the knowledge and skill of the students. So coming on education versus skill, जो मेट्रोमैन श्रीधरन जी हैं, he has said that only 12% engineers are in India are employable. इतने बड़े जो इसको देखिए कहा नहीं जा सकता कि कोई भी एग्जैक्ट फिगर कि कितने परसेंट इंजीनियर्स एम्प्लॉयबल है, ये तो एक गेस है. तो श्रीधरन जी ने कहा है 12% ही एम्प्लॉयबल है. सिमिलरली वी कैन टेक इट एज, हम लोग मान सकते हैं कि थोड़ा ये नेगेटिव फिगर है, पेसिमिस्टिक है, 10 to 20% एम्प्लॉयबल है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, बिकॉज देयर इज नो एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ दिस. टू बिकम एम्प्लॉयबल स्किल इज रिक्वायर्ड. कारण कि एजुकेटेड तो हो जाते हैं लेकिन स्किल उनमें नहीं रहती. फॉर एग्जाम्पल, ए सॉफ्टवेयर कंपनी में आस्क इट रिक्वायर्स पर्सन्स knowing Oracle irrespective of the fact that he is BME, BCA, MCA.
कोई एक सॉफ्टवेयर कंपनी है बेंगलोर हैदराबाद में, बोल सकती है कि भाई हमको तो ओरेकल जानने वाला ही बंदा चाहिए, irrespective of his background, qualification background. Similarly, क्या स्किल? स्किल मीन्स फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिशियन. अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर you are that means you cannot expect electrical engineer to be expert of changing bulb, tube light, or repairing fan, etc. So electrician, plumber, fitter, driver also, etc. are all skilled persons. In villages, people are mostly skilled. In cities, people are mostly educated. विलेज में स्किल ज्यादा, माने कि स्किल से ही रोजी रोटी कमाते हैं. एजुकेशन एंड स्किल आर द टू साइड्स ऑफ a coin. To win the race, education and skill both are important. माने अगर if somebody has to become successful, then he should acquire education as well as skill. Situations like COVID-19 may be utilized for skill development through YouTube, etc. This is a good time in which people are sitting in home most of the time, and if not in home, then office has also that means in different offices. I cannot say that offices have no work or little work, ऐसा कहना तो गलत होगा, लेकिन इतना तो सही है कि आजकल बहुत सा टाइम मिल रहा है सभी को, एज ऑन एवरेज काफी टाइम मिल रहा है, तो उसमें यूट्यूब वगैरह से कुछ कुछ नई चीजें सीख सकते हैं. Let us see the difference between data, information, knowledge and wisdom. Data is plural form of datum. Datum word से बना है. Data is unprocessed or raw facts and figures without any interpretation or analysis. माने ये raw fact है data. For example, price of petrol is अगर कहें कि 79 rupees per liter है, तो this is data. Data may be of two types, quantitative and qualitative data. Quantitative data is that which can be measured, added, subtracted, ये सब ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ए सैलरी एक्सेट्रा, सैलरी में ये सारे डीए सब ऐड कर सकते हैं. लेकिन क्वालिटेटिव डाटा इज दैट व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड. फॉर एग्जांपल मेल फीमेल, इंटरनेट कनेक्शन इज अवेलेबल इन हाउस और नॉट, एक्सेट्रा. दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डाटा. तो एडवांटेज, लेट अस सी the advantages of digitization first, because this is relevant to our today's topic, digital education. So let us see digitization, concept of digitization in literature. Digitization has played a great role in almost all walks of life. Education system is not touched with this digitization. All walks of life में digitization आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं. आजकल आप अपने सराउंडिंग को ही देखें तो हर जगह आपको डिजिटल चीजें दिखेंगी. और एजुकेशन इज आल्सो नॉट रिमेनिंग अनटच्ड. विथ डिजिटाइजेशन आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो अभी हो रहा है इस समय इज आल्सो पॉसिबल, एंड इट इज पॉसिबल दैट एन IIT टीचर टीचेस यू जस्ट लाइक सिटिंग इन ए क्लासरूम. गेट द बेस्ट एजुकेशन. एंड अब इस समय मान लीजिए किसी को दंतेवाड़ा, जगदलपुर, बस्तर से भी कनेक्ट होना है, अगर नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है तो वो कनेक्ट होकर सुन सकता है. एनी टाइम एनीवेयर इट इज पॉसिबल. टेकिंग एजुकेशन इज पॉसिबल. दैट मीन्स एजुकेटर एंड लर्नर नीड नॉट सिट टुगेदर एट ए फिक्स टाइम, एट ए फिक्स प्लेस, जैसा कि हम लोग के क्लासरूम में होता है. जरूरी नहीं कि आपको पीरियड बांध दिया जाए कि भाई इस समय स्टूडेंट भी आएगा, टीचर भी आएंगे, एग्जैक्ट यही टाइम से क्लास शुरू होकर खत्म होगी. फिजिकली आने की जरूरत नहीं. Only requirement is of internet. Fortunately, according to a research by Times of India, 1 GB data costs only 18.5 रुपया in India, which is cheapest in the world. माने इंटरनेट की कॉस्ट इंडिया में तो बहुत सस्ती है, चीपेस्ट है, तो ये तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है. Similarly, a good teacher can get a large number of audience, and a learner can get a large number of teachers. Both the things are possible. जैसे कि कोई स्टूडेंट है
वो एक टॉपिक पढ़ा, उसको समझ में नहीं आया, वो दूसरे टीचर से पढ़ सकता है, तीसरे टीचर से पढ़ सकता है। उसी प्रकार से टीचर, तो कोई सोचता है कि भाई आई एम ए वेरी गुड टीचर, तो why to limit his good that means quality of teaching to only 60 people, 60 students? So he can share his knowledge, wisdom, knowledge everywhere to unlimited number of people, thousands of people through this digitization only. So both the things are possible. The student is getting many teacher, many to many relation is there. Teacher is also getting many students. YouTube is the example. Digitization has also the advantages like easy storage, portability, good quality. सब देख ही रहे कि कितनी पोर्टेबिलिटी है, स्टोरेज भी इजी है आपको। मेरे पास अभी मैं जहाँ बैठा हूँ बगल में अलमारी है मेरी जिसमें बुक्स हैं, निकालना होता है तो बुक खोजना पड़ता है, तो इसमें सभी चीज आपको मिल सकती है। अगर आप अपने एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ कि आप अपने नोट्स को अगर धीरे धीरे डिजिटाइज करें तो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। एनालॉग एंड डिजिटल सिस्टम। एनालॉग मीन्स थोड़ा सा देख लें हम लोग कि कोई कह सकता है कि भाई हम इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट नहीं है, मैकेनिकल के हैं, केमिकल मैकेनिकल इंजीनियर है, हमको क्या मतलब है एनालॉग डिजिटल से? तो नथिंग लाइक दैट। एनालॉग मीन्स everybody is supposed to know some preliminary technical knowledge. So analog means continuous, digital means discrete, discrete means अलग अलग, different. तो आप लोग में से कुछ लोग शायद देखे होंगे, पुराने समय में रिकॉर्ड प्लेयर होता था, रिकॉर्ड जिसमें बड़े बड़े रिकॉर्ड रहते थे, ग्रामोफोन होता था, टेप रिकॉर्डर हुआ करता था अपने घरों में, उसमें कैसेट्स लगाए जाते थे, जो अपने कैमराज होते थे जिसमें कि याद है मैंने यूज किया है, जिसमें 36 ही रील लगाती थी, माने 36 फोटो आप खींच सकते हैं केवल। तो हम लोग को एक एक फोटो बड़ा सेलेक्ट करके खींचना पड़ता था। नहीं मतलब कभी नाम भी मतलब मुंह से सुने भी नहीं ना चाचा का। सिमिलरली टेलीफोन, बैलेट पेपर्स जो पुराने समय में इलेक्शन हुआ करता था, उसमें हम लोग क्या करते थे, बैलेट पेपर यूज करते थे, सील लगाते थे। तो आजकल क्या है, डिजिटल कैमरा है, यू कैन टेक नंबर ऑफ फोटोज, इमेज प्रोसेसिंग इज आल्सो पॉसिबल, माने आपने जो फोटो लिया उस पर आप थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग, ब्यूटिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं। मोबाइल फोन्स हैं टेलीफोन की जगह, स्मार्टफोन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ गई, जो पुराना सिस्टम था बैलेट पेपर वाला वो खत्म हो गया। ये सब आपका डिजिटल टेक्नोलॉजी ही है। ये एक छोटा सा पिक्चर कहीं मिला था, तो इसमें दिखाया गया किस प्रकार से ग्रामोफोन है जो पहले होता था, आजकल मोबाइल डिवाइस है, टेलीफोन होता था मोबाइल से कन्वर्ट हो गया है। पहले हम लोग के घरों में केबल टीवी आया करता था, वो भी एनालॉग का सिस्टम था, तो आजकल इस तरह से डायरेक्ट टू होम वाले कई आ गए हैं। तो सिग्नल कैन बी, जैसा मैंने कहा, सिग्नल कैन बी आइदर एनालॉग और डिजिटल। Basically, I belong to electrical engineering background. That is why this is my, you can say, favorite topic. So that is why I am giving some glimpses of this. Signal जो होता है वो एनालॉग हो सकता है या डिजिटल हो सकता है। एनालॉग सिग्नल्स आर कंटिन्यूअस, माने कंटिन्यूअस रहता है, और हैविंग इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, whereas डिजिटल सिग्नल्स आर डिस्क्रीट, माने कि जो फर्स्ट फिगर आपको दिख रहा है वो एनालॉग का एग्जांपल है। देख रहे हैं आप कि किस तरह से कंटिन्यूअस है, एकदम ग्रेजुअली चेंज होता जा रहा है, जीरो फिर उससे और बढ़ा फिर घटा। लेकिन डिजिटल किस प्रकार से चेंज हो रहा है, शार्प, या तो +5 वोल्ट यहाँ पर दिखाया गया है, -5 वोल्ट दिखाया गया है। +5 वोल्ट आप कर सकते हैं 1 है, -5 आप कर सकते हैं 0 है। लेकिन एनालॉग में क्या है, कंटिन्यूअस होता है। तो ये जो अभी आपने फिगर देखा है, ये तो एक बाइनरी सिग्नल का एग्जांपल था, क्योंकि इसमें 2 ही लेवल थे, 2 ही वोल्टेज लेवल थे। 4 लेवल हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार से बनाया जा सकता है, जरूर नहीं कि आपका 2 ही लेवल हो। तो डिजिटल सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड इन 2 वेज,
one is called baseband transmission, another is called broadband transmission. Baseband transmission means transmitting signal without converting into analog. माने कहने का मतलब आप देखते हैं कि आपके पास मान लीजिए 2 कंप्यूटर है और दोनों लाइन में कनेक्टेड है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपका एक कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल निकला, एक वायर से आप कनेक्ट किए कॉपर वायर से, और सेकंड कंप्यूटर में वो एंटर हुआ, माने डिजिटल टू डिजिटल ही एंटर हुआ। ये बेसबैंड ट्रांसमिशन है जो कि कम दूरी के लिए होता है। और दूसरा है ब्रॉडबैंड, जिसमें कि डिजिटल इज कन्वर्टेड इनटू एनालॉग, ट्रांसमिटेड एंड देन converted from analog to digital. So this is for long distance, and modulation, multiplexing etc. techniques are used. This 74th Fogen आप refer कर सकते हैं। ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, आप देख सकते हैं, जिसमें कि सेंडर रिसीवर है। मान लीजिए एक बंद कमरे में हम लोग बात कर रहे हैं, किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, सेंडर जो कहेगा रिसीवर उसको सुनेगा। लेकिन अगर लार्ज डिस्टेंस पे आपको डाटा भेजना है तो आप क्या करेंगे, तो फिर आपको जैसे मैंने बताया ट्रांसमीटर रिसीवर लगाना पड़ेगा। और एक ट्रांसमिशन सिस्टम रहेगा। तो दैट मीन्स जो मैंने बताया आपको कि डिजिटल में कन्वर्ट होगा, डिजिटल विल बी कन्वर्टेड इनटू एनालॉग एंड देन एनालॉग विल बी कन्वर्टेड बैक इनटू डिजिटल। तो इस तरह से एक ट्रांसमिशन सिस्टम है। और इस दौरान क्या क्या प्रोसेस होंगे, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन होगा, फिर नहीं सॉरी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्शन होगा, फिर वो ट्रांसमिशन होगा, फिर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन होगा। तो आप डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क की बुक में पढ़ सकते हैं कि देयर आर फोर टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, एनालॉग टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, डिजिटल टू डिजिटल। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन होता है, दैट इज कॉल्ड पीसीएम, पल्स कोड मॉड्यूलेशन सैम्पलिंग थ्योरम, न्यूक्विस्ट सैम्पलिंग उसमें थ्योरम उसमें यूज होती है। डिजिटल टू एनालॉग के लिए एएसके, एफएसके, पीएसके, क्यूएएम होते हैं, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, फेज शिफ्ट कीइंग, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब क्या एम्पलीट्यूड होता है, क्या फ्रीक्वेंसी होती है, क्या फेज होता है, ये आप लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। जो मैंने एनालॉग सिग्नल का फिगर डायग्राम बनाया था, अगर आप उसको याद करें तो उसमें कंटिन्यूस सिग्नल था, जिसमें कि मैक्सिमम जो हाइट है उसको एम्पलीट्यूड कर रहे हैं। एक सेकेंड में जितने साइकिल पूरे हो रहे हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और फेज माने क्या होता है, जो अलग अलग टाइम पर जो वैल्यूज हैं वही उसके फेज आप समझ सकते हैं। अलग अलग टाइम पर इंस्टेंटेनियस जो भी उसके वैल्यूज हैं आप उसको फेज समझ सकते हैं। और क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और एएसके क्या होता है, मैनिपुलेट्स एम्पलीट्यूड, माने सिग्नल के एम्पलीट्यूड में चेंज करता है एएसके। पीएसके क्या करता है, उसके फेज में करता है। एफएसके क्या करता है, फ्रीक्वेंसी में करता है। क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मैनिपुलेशन क्या करता है, उसके एम्पलीट्यूड फेज दोनों में चेंजेस करता है। तो इस तरह से आपका एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, ये सब कन्वर्शन टेक्निक्स लगाई जाती हैं और सिग्नल को लार्ज लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रांसमिट किया जाता है। ये भी फिगर वही है। सोर्स कंप्यूटर है जो कि डिजिटल होता है, वो एक मॉडेम के थ्रू डिजिटल से एनालॉग में चेंज होता है और फिर टेलीफोन नेटवर्क से वो दूर तक जाता है और फिर रिसीविंग एंड पर एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होता है और फिर डेस्टिनेशन कंप्यूटर को डिजिटल फॉर्म में मिलता है। मैंने इसको एक को रिलेट करने की कोशिश की है, जिससे कि अपना अलग अलग चीजों को मैंने एक उस पे एक लेवल पर लाया है। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो अपने घरों में बिजली पहुंचती है तो वो किस प्रकार से होता है। तो जैसे छत्तीसगढ़ का जनरेटिंग स्टेशन कोरबा में है, वहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है, कोयले को जला के बिजली बनाई जाती है। वहां से स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू स्टेप अप करके बहुत दूर तक भेजा जाता है और फिर उसके बाद से
रिसीविंग एंड जैसे कि रायपुर में उसको गुड़ियारी में एक सब स्टेशन है, उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन किया जाता है और फिर उसको घरों तक पहुंचाया जाता है फीडर के थ्रू। ये डायग्राम वही है। जनरेटिंग स्टेशन एट कोरबा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, जो कि हम लोग जब बस स्टैंड से जाते हैं तो देखते हैं बड़े बड़े ट्रांसमिशन लाइन टावर्स, वही है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और ये गुड़ियारी सब स्टेशन है। तो उसी प्रकार से आपका कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो सोर्स कंप्यूटर है, उसके बाद से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का रूटर है, रूटर दोनों बोला जाता है। कलेक्शन ऑफ रूटर्स हैं जिनको कि सबनेट कहते हैं। सबनेट इज ए कलेक्शन ऑफ रूटर्स, पेज नंबर 9 टेनेनबॉम में लिखा है। उसके अलावा सबनेट एक और होता है, वो सब नेटवर्क होता है। टेनेनबॉम की बुक में लिखा है कि ये आपको कॉन्टेक्स्ट से डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट इज सबनेट। तो सबनेट की दोनों मीनिंग है, कलेक्शन ऑफ रूटर्स भी है और सब नेटवर्क भी है। आईएसपी रूटर रिसीविंग एंड का है और डेस्टिनेशन कंप्यूटर फिर माने कि रिसीव जो करता है। मोबाइल फोन की बात करें तो मोबाइल फोन में बेस स्टेशन होता है, माने टावर्स जो होते हैं, मोबाइल टावर्स होते हैं। कलेक्शन ऑफ एमएससीज होते हैं, रायपुर से भोपाल तक सिग्नल भेजना है तो आपको कई सारे एमएससीज के थ्रू भेजना पड़ेगा। एमएससीज का इंटरकनेक्शन नेटवर्क होता है। फिर रिसीविंग एंड पर बेस स्टेशन टावर से होके आपके मोबाइल फोन तक आएगा। ले देख के सभी में एक ही प्रकार का जनरल आर्किटेक्चर है, माने सेंडिंग एंड है, कोई एक डिवाइस से वो कन्वर्शन होगा, दूर तक भेजा जाएगा, वहां पे फिर वापस रिकन्वर्शन बैक होगा और फिर जो भी डेस्टिनेशन है उसको वो मिलेगा। तो आपको थोड़ा सा एनालॉग डिजिटल के बारे में बताया गया, थोड़ा सा कन्वर्शन माने ट्रांसमिशन टेक्निक्स के बारे में बताया गया, जनरल बैकग्राउंड ब्रीफ आउटलाइन उसका दिया गया। अब आते हैं हम लोग थोड़ा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर। तो अब तो ऐसा समय आ गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभी लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कुछ समय पहले इतना नहीं था। तो आपको बताएं कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एग्जांपल ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर मैं पूछूं तो क्या था, तो मेरी समझ से महाभारत में जो संजय ने बताया था, रनिंग कमेंट्री दी थी, वही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एग्जांपल था, धृतराष्ट्र को बताया था। तो आप महाभारत गीता पढ़ेंगे तो जगह जगह लिखा है संजय उवाच, माने ऐसा संजय ने कहा। तो ये वो जो देख सकते थे, देखने की उनको सिद्धि प्राप्त थी, उससे वो देख के बताते थे। तो जो मैच होता है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वो सबकी रनिंग कमेंट्री आती है, वो भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एग्जांपल है, लाइव कमेंट्री ऑफ मैचेस। बट कम्युनिकेशन इज वन वे इन दीज एग्जांपल्स। आप देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन इज वन वे, but now it is various apps and softwares like Zoom, Webex, etc. have come up, and people are using it frequently for online classes, meetings, webinars, etc. This is also a very good example of video conferencing. इसलिए मैंने कहा कि आजकल तो हम लोग सब लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को महसूस कर रहे हैं, हम लोग यूज ही कर रहे हैं। तो एनीवे ये वीडियो कुछ समय पहले तक, आज से, जबकि इतना ज्यादा ये सब कॉमन नहीं हुआ था, और आज भी ऐसी कोई बात नहीं है। आप बड़े ऑफिसेज में देखेंगे जैसे कि कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, राजभवन है, मंत्रालय है, ये सब में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के एक अलग रूम होता है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में अगर आप बुक से पढ़ेंगे या इंटरनेट में देखेंगे तो आपको कई प्रकार के उसके वो माने कि डायग्राम मिलेंगे और डायग्राम के एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, सभी सही है। लेकिन ये मैंने एक डायग्राम जो ये पिक्चर लिया है, वो रविशंकर यूनिवर्सिटी में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेटअप है उसका लाइव पिक्चर लिया हूं मैं, और ये मेरी फोटो है जो कि इस पर दिख रही है, फोटो लेते हुए। और ये वाइस चांसलर रूम में लगा हुआ है, और इसमें क्या है, ये स्मार्ट टीवी है, और स्मार्ट टीवी है, और जिस तरह ये जैसे कि इंटरनेट के थ्रू ये वेरियस बीएचयू, जेएनयू एक्सेट्रा कनेक्टेड है, और ये आपका HDMI केबल है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस कहलाता है। ये कैमरा है, ये व्हाइट बॉक्स कोडेक कहलाता है,
जो कि आपका जस्ट लाइक सीपीयू है, कोडर डिकोडर मॉडेम और इंटरफेस बॉक्स, और एक बगल में दिख रहा है वो माइक्रोफोन है, जो माउस ऐसा दिख रहा है वो माउस नहीं माइक है। तो ये जो मैंने बताया डिजिटल ये कोडेक, जो कि जस्ट लाइक सीपीयू है, कोडेक इज रिसीविंग signal from microphone, माने microphone is directly connected with codec, camera is connected with codec, आपका HDMI केबल के थ्रू आपका स्मार्ट टीवी जो है वो कनेक्टेड है कोडेक से, और एक इंटरनेट कनेक्शन का पॉइंट है, और एक पावर केबल भी है, जो पीछे दिख रहा है आपको ये पावर केबल है। तो इसका एक ये मैंने लाइव फोटो लिया उसको, और फिर उसका एक मैं ये भी वही है, ये देख सकते हैं। जैसे कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या करते हैं, जैसे हम लोग फोन करते हैं तो फोन नंबर लगाते हैं इसमें, लेकिन आईपी एड्रेस पर कॉलिंग होती है, और बहुत इजी है। जस्ट लाइक जैसे कि हम लोग का इसमें फोन का पूरा डायरेक्टरी होती है, इसमें भी आपके पास फोन की डायरेक्टरी कॉन्टैक्ट लिखा दिख रहा है छोटा सा, तो फोन की डायरेक्टरी माने आईपी एड्रेसेस की डायरेक्टरी रहती है, आप इंपॉर्टेंट प्लेसेस का आईपी एड्रेस स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये वही चीज है, इंटरफेस बॉक्स जो बताया मैं, कोडेक और क्या सीपीयू, तो दिस इज रिसीविंग सिग्नल फ्रॉम कैमरा माइक्रोफोन एंड सेंडिंग इट टू स्मार्ट टीवी एंड मे रिटर्न may get also receive also signal from smart TV। Cat6 केबल से, ये इथरनेट केबल से ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, माने जो आईओ बॉक्स कहा जाता है, जो अपने वॉल पर रहते हैं ना, छोटे छोटे बॉक्स रहते हैं, जिससे आपको इंटरनेट कनेक्शन आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर तक आता है, उसको आईओ बॉक्स कहा जाता है। तो वहां से Cat6 केबल से आपके डिजिटल इंटर कोडेक पर एक आ रहा है वायर, और नीचे पावर केबल बना हुआ है। तो ये फिगर एग्जैक्टली उसी का ब्लॉक डायग्राम है, ये खुद का बनाया हुआ है मेरा, ये उसी से मैंने जो डिवाइसेस लगे हैं उनको। लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड सी। ये तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है कि भाई एनालॉग डिजिटल क्या होता है। तो डिजिटल इनिशिएटिव्स बीइंग टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वेरियस डिजिटल इनिशिएटिव्स फॉर हायर एजुकेशन बाय मेजॉरिटी गवर्नमेंट दे आर बीइंग टेकन एंड दे आर एज अंडर स्वयं होता है। दिस इज इंडिजिनियस मूव पोर्टल, अभी आगे हम लोग कवर करेंगे। स्वयं प्रभा होता है, 32 डायरेक्ट टू होम चैनल्स ऑन 24/7 बेसिस होते हैं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, मोर देन 72 लाख digital books available, and national academic depository for authenticating the certificates like degree, mark sheet, TC, etc. issued by institutions and as per the need of users। इसी प्रकार का डिजी लॉकर भी होता है। वर्चुअल लैब, to provide remote access to a lab and share costly equipments, for example server at IIT Bombay, etc. You can access the server which is at IIT Bombay and you can work whatever you want provided they give you the permission। तो ये एक तरह से वर्चुअल लैब हो गई, जो कि सुविधा आपके यहाँ नहीं है लेकिन आप यूज कर पा रहे हैं। तो MOOC मीन्स मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। A massive open online course is an online course aimed at unlimited participation and open access via the web। माने unlimited number of participants can join through the help of internet। If you want to do a particular course like ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, किसी का ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, किसी का साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि भाई हमारे कॉलेज में तो ये नहीं है, तो भी even then you can undergo this course which is not available in your course, then MOOC will cater to your need। You have an option of listening to lecture, downloading the notes, contributing your own ideas, most importantly sharing your thoughts with your peers also। केवल आप नॉलेज ग्रहण नहीं कर सकते, नॉलेज दे भी सकते हैं, आप अपना एडिशन भी कर सकते हैं। MOOC was established in the year 2008 but gained momentum in the year 2010।
UGC has dedicated MOOC website like this. इस तरह से UGC ने MOOC की वेबसाइट डेवलप की है, और NPTEL, SWAYAM are the examples of MOOC platforms only in India. In India, IITs, ISC, Bangalore, etc. offer online courses through NPTEL. Full form of NPTEL is National Program of Technology Enhanced Learning, which requires no registration and is free of cost. तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन मिल सकता है बड़े बड़े टीचर से। ये आपका इस तरह का अगर आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा, देख सकते हैं UGC MOOC कोर्सेज आर्काइव्स, UGC MOOC, और इस तरह का आप ट्राई कर सकते हैं खुद से। SWAYAM SWAYAM means study webs of active learning for young aspiring minds. SWAYAM platform is indigenously developed by Ministry of Human Resources Development, MHRD, and AICT. Both have jointly developed SWAYAM, AICT and MHRD, with the help of Microsoft, and would be ultimately capable of hosting 2,000 courses and 80,000 hours of learning इसमें है, जो कि स्कूल, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग, लॉ सबको कवर करती है। And these are available anytime, anywhere, free of cost, and lectures are delivered by best teachers of the country. SWAYAM is an indigenous platform of indigenous माने स्वदेशी platform of Government of India, which hosts MOOC courses to enable the students to virtually attend the courses taught by the best faculty, access high quality resources, participate in discussion forums, take tests and earn credits. जो रेड से लिखा है वो उसका मतलब है क्रेडिट, माने जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि घर बैठे आप अपनी जगह में, आपके कॉलेज में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग नहीं है लेकिन आप पढ़ सकते हैं, तो नॉट ओनली यू कैन रीड, यू कैन अर्न क्रेडिट आल्सो। आपके यूनिवर्सिटी इज बाउंड टू गिव क्रेडिट, दैट मींस ड्यू वेटेज, माने आपके मार्कशीट पे भी रिफ्लेक्ट हो सकता है, आगे मैं बताऊंगा। हालांकि ये सब यूनिवर्सिटीज ने अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, लेकिन सूनर और लेटर दे विल इम्प्लीमेंट आल्सो, कुछ नहीं किया भी है। SWAYAM is an ambitious MOOC platform by the Indian government, developed by the Indian government, and under SWAYAM, professionals of centrally funded institutions in India, such as IITs, IIM, central universities, offer online courses to citizens of India. SWAYAM, in order to ensure best quality of content, following national coordinators are appointed. SWAYAM में जो courses develop हुए हैं वो AICT ने किया है, NPTEL ने किया है, UGC ने किया है। फॉर जैसे AICT तो इंजीनियरिंग के लिए आपको मालूम है, लेकिन UGC ने फॉर नॉन टेक्निकल, जो नॉन माने साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के लिए किया है। जो सिमिलरली CEC है, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन। NCERT है, इन्होंने भी डेवलप किया है। NIOS ने डेवलप किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ने किया है फॉर आउट ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स, एंड IIM भी इंडियन इंस्टीट्यूट बेंगलोर ने किया है। तो बहुत प्रेस्टिजियस जो बॉडीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उन लोगों ने मिलकर हर फील्ड के, हर वैरायटी के आपके लिए माने कोर्सेज डेवलप किए। Courses delivered through SWAYAM are available free of cost to the learners. However, students wanting certificates shall have to pay. जिनको सर्टिफिकेट चाहिए उनको थोड़ा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से SWAYAM का पोर्टल आता है।
register as a student. If you want to ask in between, then you can ask. ऐसा नहीं है कि जब खत्म हो जाएगा तब पूछा जाएगा, इन बिटवीन भी आप पूछ सकते हैं. तो रजिस्टर एज ए स्टूडेंट, जिसमें आप स्वयं का पोर्टल ओपन करेंगे तो आपको वो ऑप्शन देगा कि आपको कैसे स्टूडेंट ऐसा होना है कि किस प्रकार से होना है, और इस तरह से आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड सब क्रिएट करना होगा, और इस तरह से आप अपना उसमें लॉगिन आईडी यूजर आईडी बना सकते हैं. तो जैसा कि बताए आपको, NPTEL का एक ऑनलाइन सर्टिफिकेशन, जहां मैं सर्विस करता हूं, हमारे डिपार्टमेंट में एक कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं, उनसे पूछ के मैं उनका सर्टिफिकेट इसमें लगाया हूं. ये उनका नाम है, और उन्होंने NPTEL का कोर्स एक किया, किस पर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पर. ये उनको नंबर मिला 60%, और ये देखिए IIT मद्रास से सर्टिफिकेट उनको इशू हुआ स्वयं. ये तो जैसा as I told earlier that credit is can also be earned. ये बात हो सकती है कि आप जहाँ पर हैं और जिस यूनिवर्सिटी में हैं उसकी क्रेडिट इस समय ना दे रही हो, लेकिन ये जो इंडियन गैजेट है, गैजेट ऑफ इंडिया है, भारत के राजपत्र में लिखा हुआ है, पढ़ने में नहीं आएगा कि क्रेडिट इज टू बी गिवन, माने आप दैट शुड रिफ्लेक्ट इन योर मार्कशीट, ये मतलब है. और ये जैसे है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस में भी इंट्रोड्यूस हो चुका है कि 10 डिपार्टमेंट हैज बीन ऑफरिंग द फॉलोइंग चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम स्वयं एनेबल्ड पीजी कोर्सेज अपार्ट फ्रॉम. तो उनको क्रेडिट देना है, ये लिखा हुआ है, ये गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का ऑर्डिनेंस है. तो स्वयं कोर्स करना आपका माने आपके लिए किसी भी दृष्टि से बेकार नहीं जाएगा, वो आपकी यूनिवर्सिटी उसका वेटेज भी देगी मार्कशीट में. तो स्वयं प्रभा, स्वयं के बाद लेट अस डील विद स्वयं प्रभा. तो our honorable ex-Prime President of India, Mr. Pranab Mukherjee, had launched Swayam Prabha. The information Swayam Prabha and InflibNet एक होता है, Information Library Network, maintains the portal of Swayam Prabha. इसका पोर्टल that is managed by InflibNet. ये InflibNet एक लाइब्रेरी का नेटवर्क है पूरी इंडिया में, तो वही इसको मेंटेन मैनेज करती है. द स्वयं प्रभा इज ए ग्रुप ऑफ 32 डायरेक्ट टू होम चैनल्स डिवोटेड टू टेलीकास्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑन 24/7 बेसिस यूजिंग GSAT-15 सैटेलाइट. GSAT-15 सैटेलाइट के थ्रू स्वयं प्रभा क्या करती है, 32 DTH चैनल से वो हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम 24 घंटा ब्रॉडकास्ट करती है. Every day there will be a new content for 4 hours. 24 घंटे का डिवीजन क्या है, 4 hours न्यू कंटेंट और रिमेनिंग 20 hours 5 के स्लॉट माने 5 टाइम्स वो आपके रिपीट होते रहेंगे. वही माने 4 hours which would be repeated 5 times in a day. ये इस तरह से 24 घंटा हो गया. Allowing the students to choose the time of their convenience. जो टाइम कन्वीनियंट हो उसमें आप कोर्स कर सकते हैं. The contents are provided by NPTEL, IIT, IIT, UGC, CEC, NOW, NCERT, and iOS. This is available free of cost. यह आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसमें है, तो फिर मैंने भी पता लगाया, सर्च किया, इस तरह की कई सारे अपने प्रेजेंटेशन में लोग पूछते हैं. तो डिश टीवी और डीडी फ्री डिश में, जो कि डीडी फ्री डिश माने जो पहले की डीडी डायरेक्ट प्लस भी कहलाता था, जैसे हम लोग के घर में यहाँ पे डिश टीवी है, तो ये फ्री है. लेकिन ऑनलाइन अदर डीटीएच प्रोवाइडर्स जैसे टाटा स्काई, एयरटेल डिजिटल टीवी, वीडियोकॉन डीटीएच, रिलायंस डिजिटल टीवी एटसेट्रा डू नॉट प्रोवाइड और मे प्रोवाइड फ्यू चैनल्स आउट ऑफ 32. या तो पार्शियली प्रोवाइड करते हैं, कुछ पेड बेसिस पर भी करते हैं,
लेकिन आपका केवल एक डिश टीवी जो है और डीडी फ्री डिश, ये दो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी चैनल प्रोवाइड करते हैं। तो ये स्वयं प्रभा के देखिए सीरियल नंबर, चैनल नंबर, मेरे अपने घर में अपने रिमोट से जो सेटिंग है वो भी दिखा रहा हूँ। जैसे 2001-2 पर सेट कर दिए। लैंग्वेज लिटरेचर आपको अपने यहाँ सेट करना पड़ेगा। और ये पेरेंट एजेंसी कौन है, CEC है, UGC है। तो इस तरह से आर्ट हिस्ट्री का भी है, सभी का है। ये एक स्लाइड बाद में आनी थी, ये मैं बताता हूँ। एक चीज, अच्छी चीज अभी थोड़ा बीच में इंटरप्ट करके बता रहा हूँ। जैसे कि ये जो स्वयं प्रभा है इससे आता है, लेकिन खास करके जैसे अभी अभी जेई परीक्षा हुई है, खास करके जो 12th के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। तो वो लोग गूगल में इतना स्वयं प्रभा वगैरह नहीं लिखना पड़ेगा, वो डायरेक्ट गूगल में सर्च करें IIT JEE चैनल 22, तो वो फिजिक्स का आएगा, 20 तो केमिस्ट्री और 21 तो मैथ्स। ये हमारे यहाँ बच्चा है वो करता है यूज, तो उससे मैं बता रहा हूँ। ये चीज आप अभी देखेंगे चैनल 20, 21, 22, यही चीज है जो अभी मैं बता रहा हूँ। ये देखिए आप, ये ये देखिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, दिस इज चैनल नंबर 13। ये चैनल नंबर 13 पर आता है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये देखिए 20, ये 21 मैथ्स का, यही चीज बताया था आपको, मैंने जो बताया था। गूगल से भी आप ले सकते हैं। ये सब अलग अलग चैनल्स हैं, इतने चैनल है, 32 चैनल आपको बताया मैंने। ये 32 चैनल का डिस्क्रिप्शन है, किस चैनल में क्या चाहिए, और फिर आपको अपने यहाँ अपने घर में सेट करना पड़ेगा। तो ये इस तरह का स्क्रीन आता है, टीवी पे आपके आ जाएगा इस तरह का। माने ये बाकायदा टीचर आपको वहाँ पे कोई एक्सप्लेन करते हुए दिखेंगे और पूरा बहुत बढ़िया टीचिंग आपको दिखाई देगी। तो इस तरह से ये आप स्वयं प्रभा का ये है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैश मेमोरी सर्च करना है, कैश मेमोरी का वीडियो सर्च करना है, तो आप स्वयं प्रभा गूगल के थ्रू ओपन कर लीजिए, गो इन आर्काइव वीडियो, सेलेक्ट चैनल 13, मैंने बताया पहले आपको चैनल 13, सेलेक्ट चैनल 13 फॉर CSE and then search cache. Then various YouTube videos will come up and select any one video of your interest. But this can also be typed by NPTEL cache in Google as explained earlier. जैसे कि आपको मैंने बताया गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं उसको, वैसे ही आप स्वयं प्रभा वगैरह में नहीं जाना चाहते हैं तो आप सीधे गूगल में लिख देंगे अगर NPTEL पैरेलल कंप्यूटिंग, तो आपको इस तरह का ये स्क्रीनशॉट है, इस तरह का दिखेगा। आप जिस वीडियो को देखना चाहें आप देख सकते हैं। ये गूगल में लिखा हुआ है और कुछ नहीं, बहुत इजी है। आप NPTEL से कैश मेमोरी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, उसी से आ जाएगा वीडियो। तो नेशनल रिसोर्सेज सेंटर, MHRD has identified 75 national resource centers for development of online courses. अब सवाल ये उठता है कि ये कोर्स मैंने बताया IIT नहीं, ये NCERT, AICT, ये सब लोगों ने मिलके उसको डेवलप किया है। तो MHRD ने इस तरह का 75 नेशनल रिसोर्स सेंटर्स बनाए हैं जो कि ऑनलाइन कोर्सेज को डेवलप करेंगे। डेवलप कौन कर रहा है इस कोर्स को? तो ये उनके नेम्स हैं, लिस्ट ऑफ डिसिप्लिन वाइज नेशनल रिसोर्स सेंटर्स। ये है देखिए, ये जो है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑब्लिक यूनिवर्सिटी और डिसिप्लिन, कौन क्या डेवलप करेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला वगैरह सब नाम दिया हुआ है। ये लोग NIT वारंगल मैथ्स का कोर्स डेवलप करेगी, IIT हैदराबाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का करेगी। सभी का नाम दिया है। ये रविशंकर यूनिवर्सिटी को साइकोलॉजी का मिला है डेवलप करने के लिए कोर्स।
माने साइकोलॉजी का कंप्लीट कोर्स डेवलप करेगी। फिर गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी लाइफ साइंस करेगी। ये एनपीटीईएल के बारे में कुछ जानकारी। नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग एनपीटीईएल was initiated by 7 IITs of India, Bombay, Delhi, Kanpur, Kharagpur, Madras, Guwahati, and Roorkee, along with ISC in 2003, and 5 core disciplines were identified, namely civil, computer science, engineering, electrical engineering, electronics, communication engineering, and mechanical engineering. ये सब branches में है. And there are 270 courses in web video format which are provided by NPTEL. So these are the list of courses available in NPTEL. ये है एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर वगैरह, ये सब है लिस्ट ऑफ कोर्सेज। देख सकते हैं माइनिंग एंड इंजीनियरिंग, ये सब इसमें, ओशन इंजीनियरिंग, इस तरह का ये दिखता है। तो लेट अस कम ऑन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी नाउ। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट MHRD under National Mission on Education through Information and Communication Technology NMEICT initiated the National Digital Library। देखिए NMEICT जो है ये आप लोगों के लिए नया वर्ड होगा ऑफ कोर्स, मैं समझ रहा हूँ। और NMEICT एक बॉडी है, अभी आगे भी इसके बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा आपको। तो MHRD ने NMEICT के साथ मिलकर NDL माने नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है टू डेवलप फ्रेमवर्क ऑफ वर्चुअल रिपोजिटरी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज विथ ए सिंगल विंडो सर्च फैसिलिटी। फॉर एग्जांपल, पैरेलल कंप्यूटिंग कैन बी सर्च। NDL repository contains learning material in terms of audios, videos, lectures and textbooks। इसमें भी NDL में भी कोर्स मटेरियल्स हैं and contents are available in all Indian languages, सभी languages में है। Moreover, this project is also meant for differently abled people, माने दिव्यांग जनों के लिए भी उसमें है। The site can be accessed by, इस वाली साइट से आप एक्सेस कर सकते हैं NDL IIT KGP AC in, और फर्स्ट विल। तो NDL को यूज करने के लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वो इस प्रकार से होगा। आपको इस लिंक से NDL, ये इसका पोर्टल ओपन हो गया, इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है वैसे ही करना है। Let us see National Academic Depository, what is called NAD also. NAD is also an initiative launched by MHRD to facilitate digital storage, access and verification of academic awards issued by various academic institutions. The student is not supposed to carry his or mark sheets in original. छत्तीसगढ़ में इस तरह का एक डिजिट लॉकर भी है। This initiative promises to replace physical certificates with digital ones. NAD was launched by Honorable President of India Pranab Mukherjee on 9th July 2017। ये इस तरह का NAD का व्यू है, ट्रस्टेड डिजिटल वीडियो कंटेंट थ्रू पोर्टल एकेडमी। ये इस तरह से इसमें भी लॉगिन आपको क्रिएट करना होगा। नेशनल, ये जो है इसमें रविशंकर यूनिवर्सिटी भी रजिस्टर्ड है, दिख रहा है आपको। NAD में कौन कौन रजिस्टर्ड हैं, इसके लिए आपके इंस्टीट्यूशन को रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। तो इस तरह से इंदिरा खैरागढ़ यूनिवर्सिटी जो है म्यूजिक यूनिवर्सिटी, वो भी है
सरगुजा यूनिवर्सिटी अंबिकापुर है, रविशंकर यूनिवर्सिटी रायपुर है, ये 3 यूनिवर्सिटीज हैं या इंस्टीट्यूशन इंडिया के, सबका नाम इसमें दिया हुआ है, जो रजिस्टर्ड है. I had said that I will tell you about something about NME ICT. तो कैंपस कनेक्टिविटी, अब ये तो पूरा का पूरा अल्टीमेटली कहाँ डिपेंड कर रहा है, इंटरनेट ही पर डिपेंड कर रहा है. तो कैंपस में इंटरनेट का जाल बिछाने के लिए, कैंपस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कैंपस internet connectivity within the campus. So NME ICT is a project of MHRD. The mission is launched by National Mission on Education through Information and Communication Technology, NME ICT, to leverage information technology in learning and teaching process. Optical fiber connectivity of 1 Gbps is provided in the campus under this scheme. जो मेरे बायोडाटा में पढ़ा गया कि मैं नोडल ऑफिसर था लगभग 1 करोड़ रुपए के लिए एनकेएन प्रोजेक्ट के लिए, तो वो यही चीज है. वो NME ICT हैज लॉन्च्ड व्हाट इज कॉल्ड नेशनल नॉलेज नेटवर्क, जिसके अंतर्गत NITs, IITs, यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल, स्टेट, सब जगह 1 Gbps लाइन से पूरे सब डिपार्टमेंट में कनेक्टिविटी दी जा रही है. तो ये वही चीज है. ये optical fiber network connectivity of 1 Gbps is provided in the campus under this scheme. All IITs, NITs, IIMs and 419 universities, 25,000 colleges and 2,000 polytechnics are so far benefited by this scheme. माने आपके इंस्टीट्यूशन में 1 Gbps लाइन BSNL से आएगी और फिर फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू अलग अलग बिल्डिंग्स में जाएगी. तो उसके लिए MHRD फंड देती है. Talk to a teacher. This initiative is launched by IIT Bombay and is funded by MHRD to provide access to various courses of graduate and postgraduate level. IIT Bombay ने इसको लॉन्च किया है free of cost, taught by eminent professors of IIT Bombay using AView tool developed by Amrita University. अब AView tool ये this is same as which we are using. ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक टूल है. जब ये सब जूम वेबएक्स इतना पॉपुलर नहीं हुआ था तब इसका यूज किया जाता था, अभी भी किया जाता है. अमृता यूनिवर्सिटी है इंडिया की, साउथ में है, उसने एवीयू टूल डेवलप किया, उसके थ्रू इसमें टीचिंग होती है. टॉक टू ए टीचर. सम मोर इनिशिएटिव्स जो कि शॉर्ट में देख लेते हैं. फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन. दिस प्रोजेक्ट इज आल्सो लॉन्च्ड बाय IIT Bombay and its main objective motive is to promote the use of माने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए, उसको इनकरेज किया जा रहा है. क्योंकि जो लोग अपने इंस्टीट्यूशन में थोड़ा जुड़े हुए हैं ICT सेक्टर से, माने कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर वगैरह से, तो वो लोग हो सकता है कभी कभी फेस क्यों, जिस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का या MS ऑफिस का इतना फ्रिक्वेंटली हम लोग यूज करते हैं, वो पायरेटेड है कि लाइसेंस्ड है, इस चीज को जानने के लिए माइक्रोसॉफ्ट अपने पास राइट रखती है. और वो आए दिन वो जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो टॉप लीडरशिप है या उनके जो कंप्यूटर सेंटर, उसमें वो लोग बोलते हैं कि हम लोग इंस्पेक्शन के लिए आना चाहते हैं. तो इसीलिए फिर आप टाइम टू टाइम उसको अपडेट करते रहिए. तो इसीलिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कई यूनिवर्सिटीज आजकल उस पर ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं. MS ऑफिस की जगह आपका या विंडोज की जगह लाइनक्स और इस तरह से लिब्रा ऑफिस, ये सब का यूज किया जाता है. तो उसको प्रमोट किया जा रहा है. स्पोकन ट्यूटोरियल है. आई एम श्योर ये दुबे जी के कॉलेज में और कई सारी जगहों में ये कोर्स ये चल भी रहा होगा. दिस इनिशिएटिव इज launched by MHRD for learning various open source softwares and is conducted by IIT Bombay. तो स्पोकन ट्यूटोरियल आप लोग देख सकते हैं, बहुत फेमस है. इसमें कई सारे कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं जो कि IIT बॉम्बे के ही हैं, केवल IIT बॉम्बे के. वर्चुअल लैब्स. अंडर दिस इनिशिएटिव any two institutions can share costly equipments for enhancement of knowledge and skill without owning it. माने कि वर्चुअल लैब क्या है, माने कि कोई इंस्टीट्यूशन है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया IIT बॉम्बे के सर्वर का, आपके कॉलेज में नहीं है कोई सॉफ्टवेयर, तो
IIT बॉम्बे के सर्वर से आप परमिशन लेके वहां वर्क कर सकते हैं. ये दिस इज वन सॉर्ट ऑफ वर्चुअल लैब. So far 205 number of virtual labs are operational in India with 1550 number of experiments, and ये 6 लाख स्टूडेंट्स उससे बेनिफिट हो चुके हैं. एक विद्वान पोर्टल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, ये डेवलप किया हुआ है. यू कैन रजिस्टर, माने कोई टीचर है, सीनियर टीचर है, तो ही कैन रजिस्टर हिमसेल्फ. यू माने टीचर से मतलब है यहाँ पे. इन विद्वान पोर्टल मेंटेन्ड बाय विच इज मेंटेन्ड बाय MHRD. विद्वान नाम का एक पोर्टल MHRD मेंटेन करती है. दिस इज द डाटाबेस ऑफ एक्सपर्ट्स. इंटरेस्टिंगली इट कैन टेल मी द अदर एक्सपर्ट्स. ये एक्सपर्ट का डाटाबेस मेंटेन करती है. जैसे कि मैं चाहूँ कंप्यूटर नेटवर्क पैरेलल कंप्यूटिंग का, मान लीजिए मेरे को पैनल बनाना है, कोई PhD थीसिस सबमिट हुई और मैं चाहता हूँ उसमें 6 और 6 12 नाम का पैनल बनाऊं, तो अपने नॉन सर्किल से तो बना ही सकते हैं, लेकिन ये विद्वान पोर्टल से आई कैन गेट द नॉलेज दैट इन कंप्यूटर नेटवर्किंग या उसमें पैरेलल कंप्यूटिंग किस नाम से दिया है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड आर्किटेक्चर नाम से दिया है. इसमें मैंने भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है. तो इसके इंडिया भर में कौन कौन और एक्सपर्ट हैं, तो ये उनका डिटेल मिल जाएगा. यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ इन UGC और NAC डाटाबेस. यहाँ से आपके UGC है, NAC है, ICT है, वो भी एक्सपर्ट को ले सकती है. यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ इन UGC, NAC डाटाबेसेस भी होते हैं. ICT आल्सो मेंटेन्स डाटाबेस एंड पिक्स अप बाय ओन. UGC का भी एक डाटाबेस अलग होता है, NAC का भी होता है, तो वो सभी डाटाबेस हो सकते हैं. तो इसमें मैंने नहीं बताया है, एक ई-बस्ता भी होता है, एक दीक्षा भी होता है. तो बहुत ही अच्छे प्रकार से ये दीक्षा ऐप है, आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं. यू कैन डाउनलोड विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन गूगल प्ले स्टोर से दीक्षा ऐप, ई-बस्ता. तो आपको क्या दिखेगा, माने कि एक तरह से बैग है, बैग ऑफ ओपन सोर्स बुक्स है, बैग ऑफ ई बुक्स है, और आपको 1 से लेके 12 तक के अलग अलग डिसिप्लिन्स के, साइंस बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट्स के आपको बुक्स ऑनलाइन मिलेंगे. ये ई बुक का जमाना है. एक कहीं से फोटो मिली थी बहुत अच्छी, तो मैंने इसको लिया. ये फोटो में देख रहे हैं कि अनएजुकेटेड लोग आ रहे हैं और बुक पढ़ के एजुकेटेड होके बाहर निकल रहे हैं. ई बुक, तो फिजिकल बुक्स आर डिफिकल्ट टू कैरी, ऑफ कोर्स, जो मैंने पहले भी बताया. सर्चिंग, उसमें बड़ी दिक्कत की बात होती है. कोई टॉपिक अगर सर्च करना है आपको, तो बड़ा उसमें माने बोरिंग टाइप का टीडियस जॉब लगता है, पेज पलटो और सर्च करो. हालांकि मेरा तो एक्सपीरियंस है कि उस बोरिंग काम में भी एक प्लस पॉइंट ये मिलता है कि उस दौरान आपको कई और सारी चीजें पता चल जाती हैं. कैन नॉट रीड इन डार्क, अंधेरे में नहीं पढ़ सकते. Trees are cut for making papers. These problems are overcome in e-books. One good example is Kindle. Kindle is owned by Amazon. It gives you a feel like actual physical book. It avoids Blu-ray also, जो कि मोबाइल से निकलती है. Thus is good for eyes also. And one can carry lakhs of books in his pocket. तो आपको जो ई-बस्ता, दीक्षा ये बताए, ये भी इसी तरह से Kindle भी एक होता है, और ये पेड रहता है. इसको परचेस कर सकते हैं, लेकिन अच्छा है, ये एक अच्छा फोटो है, किंडल का ये फोटो है. तो इस तरह से ये हिंदुस्तान टाइम्स में फोटो आई थी. गुड़गांव के एक स्कूल में इस तरह से स्कूल के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं टैबलेट की सहायता से. तो इस तरह से हम लोग डिजिटल एजुकेशन का आजकल फ्रिक्वेंटली यूज किया जा रहा है. ये तो कोविड के पहले की फोटो है. तो माने दिस इज हाउ डिजिटल एजुकेशन is playing a very big role nowadays. In today's world, when everything is becoming global, one cannot afford to remain confined to a classroom. कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं बस क्लास में पढ़ाऊंगा within 4 walls of a classroom. Publication is global.
that can be seen, visible in entire world. Archive, repository is also global. One can put his ideas globally through the research paper या कई और प्रकार से आप अपने आइडियाज को ब्लॉग लिख के कई प्रकार से आइडियाज को ग्लोबली रख सकते हैं एंड यू कैन इनवाइट सजेशंस ऑन दिस इन योर आइडिया. Therefore, in order to take up the cutthroat challenge in global scenario, हम लोग बात करें केवल इंडिया की नहीं, अगर वर्ल्ड, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप और चाइना, जापान, तो आपको अप टू डेट रहना है अगर, तो आपको ये सब से एक्वेंट होना ही पड़ेगा. यू आर बाइंड टू एक्वेंट विथ डिजिटल एजुकेशन एंड टेक अप दिस टेक्नोलॉजी and make use of this technology very frequently. So thank you very much. Hello. Hello. हाँ. Dubey sir. Thank you very much, sir. Manju madam, please be ready. Yes, sir. Yeah. Questions Thank you. can be asked. Thank you, Sanjay sir. Questions can be asked. Yes, sir. Thank you, sir. We are really hello, am I audible? Yes, Yes, madam. Yes. Thank you, sir. We are highly privileged to have you amongst us. We are highly privileged to have such a knowledgeable person amongst us. It was really an insightful session. Though during this pandemic time, we are all familiar with the words digitization, digital education, or online education, but the in-depth knowledge which you have provided us is really appreciable. Even I agree with your key points. The digital education cannot replace an experienced teacher. We teachers, we need not worry that if all the classes become online and if physical classes are replaced by online classes. So yes, digital education can never replace an experienced teacher, though it can definitely add to the knowledge and skill of students. The other key point that was given by sir is education and skill are the two sides of a coin. We have skills among our villages, and we find the people living in cities and towns are educated, but both are required for being successful in life. Then we have all heard about Mahabharata, we are all aware of, but yes, the live commentary which was provided by Sanjay to Dhritarashtra during the time of Mahabharata, that was the starting of video conferencing, though we all know, but we never thought on this point. And thank you, sir, for providing us an in-depth details about various initiatives and projects launched by various institutes, including the IITs for online education, the various courses provided by the whether it is NPTEL or SWAYAM through the MOOC platforms, and also that these institutes, they provide these certificates as well, and these certificates carry credit points also. Then the information which is provided regarding the National Academic Depository about the NAD, the students can definitely store their certificates. The project launched regarding Talk to a Teacher launched by the IIT Bombay free of cost. So we are thankful for such in-depth knowledge. So we have few questions for you. Okay. No, we have so many platforms which provide us with the online education. But still we find that even today, in our villages, we find that we do not have such strong internet connectivity because all these online platforms, all this online education is mainly dependent upon the internet facility. Exactly. So even in most of our villages, we do not have such a strong network connectivity. So what would you suggest for those students who live in remote areas? So what can be done regarding this? Exactly. This problem is coming up, and definitely I agree that students who are living in urban areas, cities, metropolitan cities,
they are getting and taking more benefit and advantage of this internet, digital education, etc. But remote areas students are largely deprived of this facility, and Yes, sir. this difficulty is faced in everything. Nowadays, examinations are to be conducted for final year. So how to fill up the form, how to get the question paper, answer copy. Even during this pandemic time, we were running our online courses. So that time also we faced this problem. But you can appreciate that Government of India has taken a note of this problem. Yes, And sir. our Prime Minister has also said that fiber optic cable will be laid down everywhere. And connectivity is, because India is a very big country, area wise, population wise. So it may take time to get connectivity in each gram panchayat, etc. But things are going on very rapidly. As I told earlier, that data cost, internet cost is also very low, uh, rather lowest in world in India. So we can appreciate this thing, and with the passage of time, definitely internet will, when it will reach to each nook and corner of India, then all these students will be able to get the benefit of digital education. Yes, sir. Thank you, sir. So we have one more question from Dr. Swati Dubey, ma'am. As you said, really, internet charges are very lowest in India as compared to the rest of the world. So, but still we find we have students who are really financially deprived. So like we have many students who really cannot pay even for this lowest internet charges. So what can be suggested for these students? These are all practical problems, and sooner that is to be resolved, and government is paying attention. Only this thing can be said, that at this moment of time, and that is why whatever best is possible, Government of India is doing. And it is this reason why only that internet cost is so low in India, but minimum cost is required to be borne by each and every user. There is no doubt in this. Okay. Thank you. So we have one more question from Gunjan Advani. Now, like NPTEL and SWAYAM courses, they are providing us with the e-certificates. Now, are the e-certificates given by NPTEL beneficial in our higher education? It's exactly, I told earlier also that various universities have implemented and have applied it in their ordinance. They have modified the ordinance as per the Gazette of India. But not all the universities have taken up or have adopted this. But sooner or later, all the universities are bound to adopt this as a course which will be given credits also. So I don't know, maybe in your university where you are, it might not have been adopted so far, but things are going on, and sooner or later it will be adopted. And then suppose you do a course of automobile engineering, cyber security with your own choice. For example, I have given example of contract lecturer of my department. He has done information security course, which he has got certificate. But he is nowadays teacher, so he is not that. Even then, suppose he produces in some interview, then some extra advantage benefit should be given to him. So that means preferences is given to these certificates even during the time of interviews. So if any other participants have any more questions, they are free to ask. Thank you, Sanjay sir. Thank you for all the knowledge which you have shared with us. We are really